Next question, question number 7. Prove that in Z by generated by A, 2 is a prime number. So prime element. Now it is very simple questions. So how we will solve it? Now in Z generated by 8, this values. So my aim is to prove that 2 is a prime element. So let 2 divide A bar into B bar. So where A bar and B bar belongs to Z by generated by 8. So it means it is a AB bar. So what means AB bar is a remainder when AB is divided by 8. It implies AB can be written as 8Q plus A bar B bar या AB bar, right? Now 2 divide this number and 2 divide this number. So it implies this 2 divide AB, and it implies since 2 is a prime number, so 2 divide A or 2 divide B. Also we know that 2 divide 8, so it implies 2 divide A bar or 2 divide B bar. So it means 2 is a prime element of this set. So in this way we can prove that it is a prime element. So after that, now what is my next question? So next question is expected for examination. So see it very carefully. Now what is the statement of this question? So this question has 3 statements. So statement number 1. Now statement number 1, show that in ZX generated by X plus generated by 2 is not a principal ideal. Or this question may be asked as, prove that in ZX it is not a PID. So this is asked in 2009 and 14. Also the third statement is, if R is PID, for example Z is PID, is Rx is PID? So answer is no. Then justify your answer. Now justify your answer by proof of this result, by giving the proof of this result, because here Z is PID, principal ideal domain. So when we prove this question, so we see that Z of X, the ZX is not a PID. Now, so proof of this question. Now, my aim is to prove that it is not a principal ideal. So I take, so prove this with the help of contradiction. Let I, which is generated by X plus generated by 2, this is it. So suppose it is a principal ideal. So suppose this is a principal ideal. So this ideal is a principal ideal. So if this ideal is a principal ideal,
then it implies it is generated by I is generated by some element. That element belongs to Z of X, because we are discussing in Z of X and this F is non-zero. Remember that. So it implies the next step, generated by X plus generated by 2, so which is equal to generated by F, this values. Now it implies what we get, generated by X is a subset of generated by F and generated by 2, which is a subset of generated by F. So from this what we get, F divide X, this is from right hand side, and from this F divide 2, so we get this values. So first I take this values, F divide X. If F divide X, then X can be written as similarly F divide 2. So I take this values. Now if F divide 2, then 2 can be written as F into G. So this is for some G belongs to Z of X, this values. Now what we get? We get degree of F plus degree of G. So that is from this, which is equal to, so what is the degree of 2, which is constant term, so this is equal to 0. So this is a degree of 2, so that is 0. So it implies both have 0 degree. So it implies clearly degree of F is equal to 0. If degree of F is equal to 0, then it means F is a constant term. So constant term means F is a sum. It implies F is some alpha which is a non-zero element belongs to Z. So here we find the value of alpha. We value the find of F. Now from our equation will become, if F is generated by alpha, so our equation will become generated by X plus generated by 2, so which is equal to generated by alpha. Now from this what we get, generated by X is a part of generated by alpha, then it implies alpha divide X. So we can directly choose these values. Here we substitute the value of F, so again we get these values, alpha divide X in Z of X, these values. So it implies, what is our next step, X which is alpha and into some polynomial. So that polynomial is H, where H belongs to Z of X. So we get these values. Now here H is a polynomial. Now to find the degree of H, since it is a constant, so it implies degree of H will be 1. Why 1? Because the degree of left hand side, which is X, so that is a 1. So in this way degree of H is equal to 1. If degree of H is equal to 1, so H can be written in this way, beta X plus gamma. So where beta and gamma belongs to Z and beta is a non-zero number. Why? Because degree is 1. So H can be written as beta X plus gamma. Now substitute this value in this equation.
So if we substitute, then we get x is equal to alpha beta into x plus alpha into gamma, this value. Now comparing the coefficient, so constant term is compared with constant, and coefficient of x here it is 1, which is equal to alpha beta. So what it means? It means alpha is unit and also beta is unit, so alpha is unit. So here alpha is invertible, alpha is unit. If alpha is unit, it implies 1 can be written as alpha into alpha inverse. So it is multiple of alpha. So this is a generated by alpha. Now what is this value? This value is generated by x plus generated by 2. So 1 can be written as the linear combination of this vector. So it implies 1 which is equal to x into polynomial t plus 2 into second polynomial, if I write that is equal to v, where t and v, these are polynomial belongs to z of x. So this is a polynomial belongs to z of x. Now this t is polynomial and it is a x. So suppose if it is a polynomial, so this is of this kind. So this v, which is equal to beta naught plus beta 1 x plus beta 2 x square plus so on, if it has degree m, so beta m x raised to power m. So if it is a polynomial, so polynomial, then it has degree, suppose it has degree m, then we can write it as, so it implies 1 can be written as xt plus these values beta naught plus beta 1 x plus so on beta m x raised to power m, these values, and this is into 2, so we get these values. Now comparing the coefficient, so all these terms are multiple of x, so all these terms, it is a multiple of x, this term is multiple of x, so constant term in the left hand side which is a 1, in the left hand side which is 1, and right hand side which is a 2 beta naught. Yeah, we simply substitute x equal to 0. If we simply substitute x equal to 0, then 2 beta naught which is equal to 1, where beta naught belongs to z. So it implies, what it means? 2 divide 1. So which is contradiction, which is contradiction. So hence our supposition is wrong. Hence our supposition is wrong. तो साडी जिहड़ी सपोजिशन आ वो रॉन्ग हो गई, जो असीं मन रहे सी वो गलत हो गया, और मन की रहे सी कि साडे कोल आई प्रिंसीपल आइडियल है, तो जिहड़ा साडे कोल आई है विच इज़ जनरेटेड बाय एक्स प्लस जनरेटेड बाय 2 विच इज़ नॉट ए प्रिंसिपल आइडियल, not a principal ideal, so which prove our result. तो ये साढ़े को प्रिंसिपल आइडियल नहीं होएगा। अगर ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, सो नैचुरली जिहड़ा साढ़े को z ऑफ x है
ये की होएगा, इट इज़ ए नॉट ए पी आई डी, नॉट ए पी आई डी। सो वट वी कनक्लूड कि जिहड़ा साडे कोल सैट ऑफ इंटीजर है ये तो प्रिंसीपल आइडियल डोमेन है, ठीक है, पर जेड ऑफ एक्स ये प्रिंसीपल आइडियल डोमेन नहीं है। इसका मतलब साडे कोल की आया, इसका मतलब ये आया कि जरूरी नहीं कि जे जेड या आर प्रिंसीपल आइडियल होवे तो आर ऑफ एक्स भी प्रिंसीपल आइडियल होएगा, ठीक है जी। उस तो बाद असी जिहड़ा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चनस बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करांगे, और वो बेसिक क्वेश्चनस किहदे नाल रिलेटेड हैगे आ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिद्दां आपां नंबर थ्योरी च पढ़िया, और बिल्कुल उस ढंग नाल LCM जिहड़ा लीस्ट कॉमन फैक्टर हुंदा, सो LCM ये साडे कोल असी डिस्कस करांगे। सो सब तो पहला डेफिनीशन नूं डिस्कस करन तो पहला तुसी एक चीज़ मन के रखो दोनों डेफिनेशन च, आर साडे कोल जिहड़ा है इट इज़ ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। सो ये साडे कोल मिनीमम कंडीशन तो है ही है, इट इज़ ए कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है। यूनिटी की हजे लोड़ नहीं, सो कम्यूटेटिव रिंग ही असी इनू अजूम करके रखिए। तो दो एलीमेंट असी ए तो बी मान लो आर दे विच लैने, दिस इज ए बी बिलोंग्स टू आर। तो पहली डेफिनीशन मैं जिहड़ी चूज करूँगा वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो डी नू मैं कह सकदा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी, इट मीनस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD। सो ਇਹਦਾ नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, एक चीज। दूजा है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, जिद्दां असीं नंबर थ्योरी च पढ़िया है। हुण जिहड़ा साडे कोल दिस नंबर है, इस नंबर नूं आपां सोचना किद्दां, ग्रेटेस्ट अमंग देयर कॉमन डिवाइजर, मतलब कि ए बी दे कॉमन डिवाइजर लै ले और उन्हां च जिहड़ा साडे कोल ग्रेटेस्ट होएगा, सो दैट इज़ कॉल्ड GCD। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मीन ग्रेटेस्ट अमंग देयर कॉमन डिवाइजर। सो इदा आपां इनू विजुलाइज करना या सोचना। तो वह मतलब ये दो पार्ट बन गए, किहड़ा पार्ट, एक पार्ट ये डिवाइजर है, दूजा पार्ट ग्रेटेस्ट अमंग देयर डिवाइजर्स। सो इट मीन्स जे डिवाइजर है तो वन थिंग इज क्लियर, D डिवाइड A एंड D डिवाइड B, हो गया। सो पहला पार्ट हो गया, इट इज़ ए डिवाइजर। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड पार्ट कि ए ग्रेटेस्ट है अमंग देयर डिवाइजर, मतलब जे कोई होर एदा डिवाइजर है फॉर एनी एक्स नॉन जीरो बिलोंग्स टू आर। हुण डिवाइजर कदों हुंदा, जदों एक्स ए नूं भी डिवाइड करे एंड एक्स बी नूं भी डिवाइड करे, ठीक है जी। तो डिवाइजर हो गया। तो असी की कहना चाहते हैं, असी कहना चाहते हैं डी ग्रेटेस्ट आ। तो ग्रेटेस्ट टर्म जे आपां दो नंबरां नूं डिवाइड करना होवे किधरले पासे हुंदी, राइट हैंड साइड ते। सो इट मीनस एक्स डिवाइड डी। ये साडे कोल सैकंड पार्ट बन गया कि अगर साडे कोल दिस फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर और जेड़ा ए नूं भी डिवाइड करता होवे बी नूं भी डिवाइड करता होवे, तो वो नंबर दैन एक्स
divide D in R. So remember that this all thing is in R. ये साढ़े को डेफिनेशन हो गई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। तो ये दो पार्ट बन गए, वन इज कॉमन डिवाइजर, सो पहली इक्वेशन दस रही है, दूजी है ग्रेटेस्ट अमंग देयर कॉमन डिवाइजर, वो दूजी कंडीशन दस रही है। अगली डेफिनेशन बिल्कुल इस ढंग नाल आर साढ़े कोल है, हुण असी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई की गल करनी है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। सो असी स्मॉल एल यूज़ कर लिए, सो विच इज़ ए LCM ए बी, उदा ही दो एलीमेंट ले लें, और इट इज़ ए की है, सो दिस इज़ ए LCM ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। सो इनू आपां की कहना, लीस्ट पहला आ गया, दूजा कॉमन मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर ऑफ ए एंड बी, राइट। लो जी हुण समझो, अगर ये लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ, तो दो हिस्से हो गए ये भी डेफिनेशन दे। पहला हिस्सा इट इज़ ए कॉमन मल्टीप्लायर, सो कॉमन मल्टीप्लायर मीन्स एल ए नू भी डिवाइड करेगा, दिस स्मॉल एल इट डिवाइड्स ए, एंड सैकंड एल जिहड़ा है ये बी नू भी डिवाइड करेगा। पहला पार्ट हो गया। दूजा पार्ट हुणे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, भी जिन्ने भी ये होर अगर मल्टीप्लायर है उन्हां चों सब तो लीस्ट है। सो फॉर एनी वाई नॉन जीरो बिलोंग्स टू आर, हुण ये मल्टीप्लायर कदों होएगा, जदों वाई ए नू भी डिवाइड करे एंड वाई बी नू भी डिवाइड करे, ठीक है जी। सो उल्ट मैं शायद लिख गया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ए, क्योंकि ए डिवाइड एल, ए डिवाइड एल एंड बी डिवाइड्स एल, तो एल मल्टीप्लायर है ना, ठीक है जी। सो ए डिवाइड एल एंड बी डिवाइड एल। सिमिलरली इस जगह पर भी ए डिवाइड वाई, दूजे पासे बी डिवाइड वाई। सो मैं रिपीट कर देना, फर्स्ट कंडीशन असी फाइंड आउट की कॉमन मल्टीप्लायर तो, इट मीनस ए डिवाइड एल एंड बी डिवाइड एल। दूजी कंडीशन ये आ गई पहली कंडीशन। दूजी कंडीशन क्या है, लीस्ट अमंग देयर कॉमन मल्टीप्लायर। तो असी कोई मल्टीप्लायर इहदा होर लै लिया, कौन लिया, वाई लिया, और ये की होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। सो लीस्ट वाली टर्म किधरले पासे होंदी, लैफ्ट हैंड साइड ते। सो एल डिवाइड साढ़े कोल, दिस इज ए एल डिवाइड वाई इन आर, ठीक है जी। सो ये साढ़े कोल याद रखने का तरीका है, और इनू असी किस ढंग नाल रिप्रजेंट करना, इनू असी इस ढंग नाल रिप्रजेंट करना। सो ये आ गया LCM, और जिहड़ी सर्कल वाली ब्रैकेट है ये साढ़े कोल की आ गया, वो साढ़े कोल GCD आ गया। और एक चीज़ होर याद रखना कि जिहड़े ए बी असी एलीमेंट लए आ, सो दे आर द नॉन जीरो एलीमेंट्स। इस डेफिनेशन नूं आपां कुछ क्वेश्चनस दे नाल इन्हां नूं आपां डिस्कस करन दी कोशिश करते हैं। सो फस्ट क्वेश्चन मैं चूज कर लिया, मान लो आपां थोड़ी जी इहदी अंडरस्टैंडिंग लई कुछ क्वेश्चन नूं डिस्कस कर लिए। सो मैं Z बाय जनरेटेड बाय 12 लै लिया, दिस वैल्यू। सो सानू पता ये एलीमेंट होंगे 0 बार 1 बार। सो ये जिहड़े एलीमेंट्स है ये हो गए 0 बार 1 बार 2 बार 3 बार, करते जाइए 11 बार 11 बार। तो मैं प्रूव करना चाहना, मेरा फर्स्ट पार्ट आ कि 6 बार और 8 बार इन्हां दोनों का जिहड़ा GCD है, सर्कल मीनस GCD हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
वो कितना आएगा 2 बार आएगा एक पार्ट। और दूजा पार्ट मैं प्रूव करना चाहना कि 6 बार एंड 8 बार हैज़ नो LCM, ਇਹਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ नहीं होएगा। ठीक है जी। सो पहला तो आप GCD की गल करनी है। नाउ दिस 6 बार इंटू 8 बार, इन्हें नोटिस करिए, ये आ गया 48, 7 तो 42, 8 तो 48। सो दिस नंबर इज 48। 48 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 12 ਨਾਲ डिवाइड किया, 12 24 36, और साढ़े कोल ये साढ़े कोल वैसे तो डिवाइड हो रहा। सो चलो 6 बार जिहड़ा साढ़े कोल 6 बार है, 6 बार नू मैं लिख सकता 2 बार इंटू 3 बार पहली गल, और 8 बार नू मैं लिख सकता 2 बार इंटू 4 बार। सो दिस इज 2 बार इंटू 4 बार। सो फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई हो गई कि जिहड़ा साढ़े कोल 2 बार है ये भी 6 बार नू डिवाइड करता, और 2 बार जिहड़ा है ये भी 8 बार नू डिवाइड करता, किहदे विच इन Z बाय जनरेटेड बाय 8। सो इट मीनस इट इज़ ए साढ़े कोल कॉमन डिवाइजर। तो असी हाईएस्ट फाइंड आउट करना। सो हाईएस्ट फाइंड आउट किद्दां करीदा, इफ I take sum x bar which is a non-zero belongs to Z by 8 bar, so which is such that x bar is divisor, it is a divisor of 6 bar, and x bar is a divisor of 8 bar। ठीक है जी। तो असी प्रूव की करना चाहते हैं, ग्रेटेस्ट कदों होएगा जो x बार 2 बार नू भी डिवाइड कर जाएगा, तो ग्रेटेस्ट हो जाएगा। नाउ फ्रॉम दिस कैन बी रिटन एज, अगर x बार इनू डिवाइड कर रहा, x बार 8 नू डिवाइड कर रहा, तो दोनों दे डिफरेंस नू भी डिवाइड करेगा। सिंपल, दिस वैल्यूज आ गए। और व्हाट इज दिस? दिस इज ए 2 बार। तो अगर x बार 2 बार नू डिवाइड कर रहा तो साडा रिजल्ट हो गया। सो इट मीन्स x बार डिवाइड 2 बार। सो व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स 2 बार इज ए GCD ऑफ 6 बार एंड 8 बार। तो असी फाइंड आउट कर लिया कि साडे कोल जिहड़ा GCD है इस इक्वेशन का वो किस ढंग नाल फाइंड आउट करना। उस तो बाद अगे असी LCM की गल करनी। सो LCM इट हैज़ नो LCM। तो असी मान लीए सपोज x बार विच इज़ ए LCM ऑफ 6 बार एंड 8 बार। ठीक है जी, ये आ गया लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो बाय डेफिनेशन एक तो होएगा 6 बार डिवाइड x बार एंड 8 बार डिवाइड x बार। साढ़े को पहली प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है जी। सो इट इंप्लाइज, इन्होंने दोनों तो भी कर सकते वैसे, x बार विच इज़ इक्वल टू 6 बार n बार, और n बार बिलोंग्स टू Z बाय जनरेटेड बाय 12। इतों भी फाइंड आउट कर सकते। सो इट मीनस साढ़े कोल x बार कितना दा होएगा, x बार ये साढ़े कोल 0 या साढ़े कोल 0 बार होएगा या साढ़े कोल 6 बार होएगा। दिस वैल्यूज फॉर सम n बार बिलोंग्स टू दिस। तो 6 बार इनू डिवाइड कर रहा, तो दिस वैल्यू इज 0, 6 बार 12 बार एंड 12 बार तो 0 बार ही हो गया। तो x बार दियाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ हो गई, जा 0 बार आएगा तो जा 6 बार आएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी 12 बार होंगी, वो भी 0 ही बन जाता। सो वी हैव, सो एज वी टेक
एक्स बार इज नॉन ज़ीरो, एक्स बार क्या आ गया 6 बार, एज एक्स बार इज नॉन ज़ीरो, सो नॉन ज़ीरो होने करके ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚੋਇਸ 6 ਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ 8 ਬਾਰ x ਬਾਰ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ 8 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਬਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 8 ਬਾਰ ਇੰਟੂ ਕਿਊ ਬਾਰ। ਸੋ ਕਿਊ ਬਾਰ ਇਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਟ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ no solution, this equation has no solution in z by generated by 12। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਊ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 6 ਬਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, it means 6 bar and 8 bar has no LCM in ਸਾਡੇ ਕੋਲ z by generated by 12। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ? ਤੋ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਸੀਐਮ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਸੀਡੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਐਲਸੀਐਮ ਤੇ ਜੀਸੀਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀਆਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਲਸੀਐਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੀਸੀਡੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਿਓ ਵੀ GCD ਔਰ LCM ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੌਸੀਅਨ ਇੰਟੀਜਰ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣ। After that the next theorem, so मैं next theorem वाल चलूँगा। So what is the statement? So पहला आप statement देखिए, if R is PID, so this R is principal ideal domain। ठीक है जी। Then every non-zero element has HCF and LCM। So then every non-zero elements have LCM and GCD या highest common factor। LCM and GCD या highest common factor। तो हो गया क्लियर कि ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਰਿੰਗ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ LCM ਜਾਂ GCD ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ RPID ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ every non-zero elements have LCM and GCD ਜਾਂ highest common factor। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਰਦਰ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੀਂ LCM ਤੇ GCD ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਏ, ਤਾਂ ਅਗਰ D ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਆਫ AB ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ R ਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ D ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ linear combination of AX and BY for some XY belongs to R, for some
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। सो इस थ्योरम की स्टेटमेंट सानू की दसदी आ, सानू ये दसदी आ कि जदों तो सिर्फ कम्यूटेटिव रिंग है उदों जरूरी नहीं उदा साडे कोल GCD ते LCM होवे, पर जदों PID हो जाता तो उहदा LCM भी एग्जिस्ट करता और उहदा साडे कोल GCD भी एग्जिस्ट करता। लो जी, दिस प्रूफ is again important. So this proof is again important. Now I consider, क्योंकि मैं दो एलिमेंट A B चो लए सी, एक जनरेटेड बाय A आइडियल बन गया, दूजा जनरेटेड बाय B आइडियल बन गया, और दोनों का सम भी सानू पता आइडियल हुंदा ऑफ R का। ठीक, सो मैं बहुत ब्रीफ च समझाने की कोशिश करूँगा। और R सानू की दिता PID, जे PID है तो जनरेटेड बाय A जनरेटेड बाय B, इनू मैं लिख सकदा जनरेटेड बाय D फॉर सम D नॉन जीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू R। ये क्यों पॉसिबल होया? क्योंकि मेरे को R जड़ा PID दिता है, स्टेप नंबर 2। ठीक है जी। सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी गेट, जनरेटेड बाय A which is a part of generated by D and generated by B which is part of generated by D. So what it means, D divide A and D divide B। तो पहली प्रॉपर्टी मैं प्रूव करती, केड़ी? कॉमन डिवाइजर आ। तो मैं आ D नू जिहड़ा सम सी, सम तो पैदा होया, उस सम दे नाल मैं की प्रूव करता, मैं प्रूव करता कि ये जिहड़ा D है ये कॉमन डिवाइजर हो गया, और यही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बन जाना, यानी हाईएस्ट जिहड़ा साडे कोल ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बन जाएगा। और इदां ही आपां इंटरसैक्शन तो LCM लभांगे। हुण पहला प्रूव कर ली। सो प्रूव करन लई एक पहली प्रॉपर्टी हो गई, हुण दूजा की आ, कोई होर इहदा डिवाइजर लईए। सो इफ उस डिवाइजर का असी नाम रख दईए X नॉट, या इस तो इलावा रख लो। सो इफ X नॉट नॉन जीरो एलिमेंट belongs to R such that X dash divide A and X dash divide B। ठीक है जी, असी इहदा डिवाइजर लभ लिया। तो मेरा रिजल्ट कदों प्रूव होएगा? जे मैं ये प्रूव करदा, की प्रूव करा? क्योंकि ये होना चाहिए ग्रेटेस्ट, तो मैं की करूँगा, X डैश नू D का डिवाइजर प्रूव करना। सो सिंपल, X डैश नू D का डिवाइजर मैं प्रूव करना। नाउ दिस रिजल्ट एक ही शो करता, एंड दिस रिजल्ट एक ही शो करता। सो डिविजिबिलिटी दे पहले रिजल्ट के मुताबिक जनरेटेड बाय A is a subset of generated by X dash, and दूजे रिजल्ट मुताबिक generated by B is a subset of generated by X dash। सो डिवाइजर की प्रॉपर्टी असी यूज करती, और इन्हां दोनों का जोड़ लिया, पहला भी सम दूजा भी सम, तो दोनों का जोड़ भी जनरेटेड बाय X डैश आ गया। ठीक है जी। हुण इहदी वैल्यू पुट कर दो। सो इहदी जिहड़ी वैल्यूज़ है वो साडे कोल है जनरेटेड बाय D विच इज़ पार्ट ऑफ जनरेटेड बाय X डैश। सो इट implies this X dash divide D। लो
मेरा रिजल्ट हो गया। तो व्हाट वी गेट D इज़ द GCD ऑफ A एंड B। सो पहला रिजल्ट मैं फाइंड आउट कर लिया। ये रिजल्ट किहदे तो जिहड़ा साडे कोल GCD है, याद रखना किहदे तो लभ्या, सम तो लभ्या। दिस इज़ फ्रॉम सम ऑफ आइडिया। तो LCM जिहड़ा है वो इंटरसैक्शन तो होएगा। सो LCM असी फाइंड आउट करांगे इंटरसैक्शन तो। सो हुण LCM की गल करिए। नाउ अगेन जनरेटेड बाय A विच इज़ आइडियल, जनरेटेड बाय B इज़ आइडियल, तो ਇਹਦੀ इंटरसैक्शन भी आइडियल होएगी। सो कंसिडर दिस इंटरसेक्शन इज आइडियल ऑफ R। ठीक। सो क्योंकि R PID है, सो दिस जनरेटेड बाय A इंटरसेक्शन जनरेटेड बाय B which is equal to generated by L for some L non-zero belongs to R। ठीक है जी, ये आ गया। हुण आ इंटरसैक्शन, इंटरसैक्शन नाल रिवर्स काम हो जाएगा, मतलब जनरेटेड बाय L ये भी पार्ट हो गया जनरेटेड बाय A दा, एंड जनरेटेड बाय L ये भी पार्ट हो गया जनरेटेड बाय B दा। सो ये तो फाइंड आउट होया A डिवाइड L और ये तो फाइंड आउट होया B डिवाइड L। सो पहली कंडीशन होगी, पहली कंडीशन डिवाइजर आ गई। सो फर्स्ट कंडीशन इज सैटिस्फाइड विच इज़ ए कंडीशन ऑफ डिवाइजर। नाउ सैकंड कंडीशन साडे कोल है कि असी कोई होर डिवाइजर लै लीए। ठीक है जी। सो A भी L नूं डिवाइड कर गया, B भी L नूं डिवाइड कर गया, तो असी उस नंबर नूं L डैश चूज कर लैंदे हां। सो इफ L डैश विच इज़ ए सम नॉन ज़ीरो एलिमेंट बिलोंग्स टू R such that A divide L dash and B divide L dash। ठीक है जी। सो मेरा काम की आ, मैं इत्थे लिख लेना, इनू लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई करना, तो L डिवाइड L डैश होना चाहिए। ठीक है ना, आ लीस्ट तां ही होएगा क्योंकि पहला मल्टीप्लायर लै लिया A तो B दा, तो असी लीस्ट प्रूव करना। सो लीस्ट प्रूव करन लई साडे कोल दिस वैल्यूज आ गई। नाउ फ्रॉम दिस वट वी गेट, ये तो उस ढंग ना जनरेटेड बाय L डैश इज पार्ट ऑफ जनरेटेड बाय E। सिमिलरली जनरेटेड बाय L डैश इज पार्ट ऑफ जनरेटेड बाय B। ठीक। सो आ आइडियल एदा भी सबसेट हो गया, एदा भी सबसेट हो गया, और अगर मैं दोनों नू इंप्लाइज करता तो दिस इज़ ए सबसेट ऑफ जनरेटेड बाय A इंटरसेक्शन जनरेटेड बाय B। दिस वैल्यूज आ गई। नाउ व्हाट इज़ दिस, ये सानू गिवन पता, इट इज़ जनरेटेड बाय L। सो व्हाट वी गेट generated by L dash which is subset of generated by L, so it implies L divide L dash। अगर L dash ਨੂੰ डिवाइड कर गया तो साडे कोल LCM बन गया। so it implies this L which is a LCM of A, B। ठीक है जी। ये किदे तो फाइंड आउट होया, इंटरसैक्शन तो, और जिहड़ा दूसरा रिजल्ट है वो किदे तो फाइंड आउट होया, वो फाइंड आउट होया साडे कोल सम तो LCM भी एग्जिस्ट कर गया और दूजे पासे साडे कोल जिहड़ा है GCD भी एग्जिस्ट कर गया। सो इहदे नाल ही साडे कोल एक पार्ट सी
ਜਿਹਦੇ 'ਚ अगर D LCM है तो D ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। तो D ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਐਜ਼ ਵੀ know that, so this equation, so ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੋ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। now this equation is, so here I write here this equation, so this values, ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ D ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾय ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸੋ D ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾय ਦਿਸ D, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਇਹ ਹੈ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾय A प्लस ਜਨਰੇਟਡ ਬਾय B। ਸੋ D ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? D ਹੋ ਗਿਆ which is equal to AX plus BY, where ਸਾਡੇ ਕੋਲ X and Y it belongs to R. So here remember that A and B are non-zero elements, so which prove our this result. तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ conclude ਕੀ ਕੀਤਾ? कनक्लूड किया कि सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ते LCM सिर्फ उदों एग्जिस्ट करते हैं जदों साडे कोल R जिहड़ा वो PID होवे, वो PID होवे तां एग्जिस्ट करते, अदरवाइज नहीं। सो अगली डेफिनेशन को प्राइम दी, तो को प्राइम च तुसी इंटीजर नाल कन्फ्यूज नहीं होना, इत्थे को प्राइम थोड़ा जिहा डिफरेंट हो जाना। सो आर साडे कोल कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है जी। सो अगर मैं ए तब B ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है दोनों, A तब B, A भी नॉन ज़ीरो, B भी नॉन ज़ीरो, एलिमेंट बिलोंग्स टू R, R ਨੂੰ बिलोंग कर रहे हैं और इन्हों असी को प्राइम कवांगे। A and B are said to be को प्राइम। So two non-zero element A and B are said to be co-prime या relative prime, ठीक है जी। A तो B साडे कोल या तो co-prime होंगे या relative prime होंगे if and only if GCD of AB ये यूनिट बन जाए। तो ध्यान रखना इंटीजर च की करते हैं कि GCD 1 के बराबर होंदा, इत्थे 1 नहीं है, इट इज़ ए यूनिट। यूनिट की हुंदा? जिहदा इनवर्स एग्जिस्ट करता। तो कोई भी साडे कोल नॉन ज़ीरो एलीमेंट को प्राइम कदों होणगे जदों उन्हां दा GCD यूनिट बन जाए। यूनिट मीन इनवर्टेबल हो जाए। उस तो अगली थ्योरम साडे कोल आ गई। सो मान लो लेट R सानू दिता PID, क्योंकि PID है तां ही इहदा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वो एग्जिस्ट करेगा। तो टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स A and B, elements A and B
ठीक है जी। ऑफ A and B, two non-zero element of R are co-prime, co-prime। ये co-prime है if and only if and only if ax plus by equal to 1 और xy कौन है साढ़े कोल for some x ਤੇ y belongs to R, ठीक है जी। सो इनों असी लीनियर कंबीनेशन ये बराबर लिख सकते। सो असी ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि जिहड़ा साडे कोल डी नूं साडे कोल यूनिट है। सो सॉल्यूशंस, सो फर्स्ट पार्ट, अगर को प्राइम है इफ A and B are co-prime, ਇਹਦਾ मतलब साडे कोल A B D ਦੇ बराबर होएगा और D साडे कोल की होएगा यूनिट होएगा। हाँ याद रखना, जे साडे कोल को प्राइम है तो GCD ਉਹਦਾ यूनिट बन जाएगा। और सानू पता कि यूनिट जिहड़ा है वो यूनिट नाल एसोसीएट है, ਜਾਂ ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि जिहड़ा 1 है इट इज़ एसोसीएट टू एवरी यूनिट, क्योंकि 1 असीं लिख सकते ना D इंटू D इनवर्स, तो 1 एसोसीएट है एवरी यूनिट नूं। जे 1 एसोसीएट है एवरी यूनिट नूं, सो 1 इज़ एसोसीएट टू D, then it implies GCD of AB equal to 1। लो जी ਤੁਹਾਡਾ रिजल्ट हो हो गया। सो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ अगर D 1 ਨਾਲ एसोसीएट आ, 1 D ਨਾਲ एसोसीएट आ, so there exist X and Y belongs to R such that AX plus BY इतने D की बजाय की आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो दैट इज़ माई फर्स्ट पार्ट। सैकेंड पार्ट कन्वर्स। कन्वर्स दे विच सानू गिवन की दिता कन्वर्सली। सो कन्वर्स दे विच सानू गिवन दिता AX plus BY विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है जी। और असी A तो B नू को प्राइम प्रूव करना। इफ आई टेक D इज़ द GCD ऑफ AB, तो को प्राइम कदों होएगा जदों मैं इनू यूनिट प्रूव करता। तो क्लीयरली जे GCD है D डिवाइड A एंड D डिवाइड B, पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, D डिवाइड देयर लीनियर कंबीनेशन किहदे बराबर आ 1 दे, तो D डिवाइड 1। जे D 1 नूं डिवाइड कर गया तो 1 कितना दा हो गया D इंटू C वर्गा फॉर सम C बिलोंग्स टू R, then it implies D साडे कोल यूनिट आ गया। जे D यूनिट आ गया दैन A तो B साडे कोल की आ गए A एंड B आर को प्राइम, साडे कोल को प्राइम बन गए, ठीक है जी। सो ये असी जिहड़ी इहदे तो वैल्यूज़ जिहड़ी आ वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि साडे कोल जिहड़ा GCD है वो प्राइम दे विच साडे कोल इस तरह का बन गया। उस तो बाद साडे कोल नैक्सट इहदे नाल ही असी रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लीए जिहड़ी इहदे नाल ही अटैच हो रही है। सो दिस इज़ एग्जाम्पल नंबर
this values. So what is that example? Can the two elements A and B in integral domain with unity ठीक है जी। सो ए तो बी साढ़े कोल दो एलीमेंट इंटैग्रल डोमेन विद यूनिटी आर को प्राइम इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। जे को प्राइम आ तो GCD ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ यूनिट कह रहे सी, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ यूनिटी ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਾਓ in this case solution, अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB को प्राइम आ तो AB D ਦੇ ਬਰਾਬਰ आ गया और D की है? यूनिट है। D यूनिट है। जे यूनिट है तो D इंटू D इनवर्स 1 ਦੇ बराबर आ गया और 1 ਜਿਹੜਾ है एक एसोसीएट हो गया D ਦੇ। जे ਇਹਦਾ मतलब D भी एसोसीएट हो गया 1 ਦੇ। So it implies GCD of AB which is equal to 1, right? So A ਸਾਡੇ ਕੋਲ since associate of any GCD is again GCD, ਜਿਹੜਾ associate ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ GCD ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਨਕਲੂਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ यूनिट ਹੁੰਦਾ ਪਰ 1 ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਥਿਊਰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ the statement of the theorem, this values. So that is a relation between GCD, LCM and product. So in that case ਸਾਡੇ ਕੋਲ this values, let R is principal ideal domain. So ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ कि कोई भी दो नॉन जीरो एलीमेंट लवांगे, उन्हां दा साडे कोल GCD भी होएगा ते LCM भी होएगा। एंड A B are नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R। ठीक है, असी दो एलिमेंट ला लें और उन्हां दा साडे कोल GCD भी होएगा तो LCM भी होएगा। असी प्रूव की करना, शो दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, GCD ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB, so which is equal to product AB into T. What is T? So where T is unit in R, यानी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ यूनिट हो जाएगा। ठीक है जी। सो इस चीज़ ਨੂੰ ਅਸੀਂ प्रूव करना है और इस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ प्रूव करांगे, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रफ ਜਿਹਾ आइडिया दे देना। तो ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ AB ਦਾ GCD D ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ AB ਦਾ LCM small l ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। तो ਅਸੀਂ प्रूव की करना, ਅਸੀਂ प्रूव करना DL
which is equal to AB into T। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ AB ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ DL ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ DL ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ AB ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ T ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਚਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਕਰਨਾ AB ਡਿਵਾਈਡ DL, ਸੈਕੰਡ ਕਰਨਾ DL ਡਿਵਾਈਡ AB। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ GCD LCM which is equal to AB into T ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਯੂਕਲਿਡੀਅਨ ਡੋਮੇਨ। ਸੋ ਯੂਕਲਿਡੀਅਨ ਡੋਮੇਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ UFD। ਸੋ ਯੂਕਲਿਡੀਅਨ ਡੋਮੇਨ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਔਰ UFD ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ PID ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈਡੀਅਲ ਡੋਮੇਨ ਨਾਲ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕਲਿਡੀਅਨ ਡੋਮੇਨ ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ UFD। ਔਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰਮਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ